So continuing with chapter 2 now, coordinate systems and transformation. Education makes people easy to lead but difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave. Okay, quote है. अच्छा, easy to lead कोड बन जाती है. Difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave. मतलब this is debatable, but again ये तो obvious है. इसका मेरे को मतलब समझ नहीं है, बट हाँ ये तो समझ में आता है. ये ठीक है, ये ठीक है. दिस इज समथिंग आई डोंट नो. दिस सीम्स डिबेटेबल. Introduction. In general, physical quantities we shall be dealing with in electromagnetic theory are functions of space and time. In order to describe the special variations of these quantities, we must be able to define all points uniquely in space in a suitable manner. तो उसको डिफाइन करना है, और पॉइंट्स इन स्पेस. दिस रिक्वायर्स यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. अच्छा, बेसिकली मेरे को एक सिस्टम चाहिए जिससे मैं बता सकूँ ये कौन सा पॉइंट है, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अनदर पॉइंट. यूनिकनेस फाइंड करनी है पॉइंट की, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग. अ पॉइंट और अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच में बी ऑर्थोगोनल और नॉन ऑर्थोगोनल. तो यहाँ पर हमारा बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, तो मेजरली तीन ही पढ़ने वाले हम लोग. को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जो हम लोग जेई के टाइम भी पढ़ते हैं एक्चुअली. और नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम्स आर हार्ड टू वर्क विद and they are of little or no practical use. Examples of orthogonal systems include your Cartesian, your rectangular, circular, cylindrical, basically circular, cylindrical, spherical, elliptic, cylindrical, parabolic, cylindrical, conical, prolate, spheroidal, the oblate, spheroidal, and ellipsoidal. A considerable amount of work and time may be saved by choosing a coordinate system that best fits a given problem. ठीक है, डिपेंड. जैसे जेई के अंदर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट वुड बी मच बेटर देन यूजिंग द जनरल सिंपल व्हाट वी कॉल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या ऑर्थोगोनल जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लोग कह देते हैं. ओके. A hard problem in one coordinate system may turn out to be an easy one in another system. हाँ, work power energy में काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत easy हो जाती हैं with spherical coordinate. In this text, we shall restrict ourselves to three best known coordinate systems: the Cartesian, circular, cylindrical, and the spherical. Absolutely awesome, because मेरे को यही तीन का समझना है और इनके तीन के ट्रांसफॉर्मेशन समझने हैं. जैसा कि I have seen in my wait. How do I stop this recording? का कुछ ऑप्शन है क्या? Dialysis. This is for video. This does not seem to work. हाँ तो वैसे भी ये ठीक है. वैसे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट और वही कोऑर्डिनेट्स ही तो पढ़ने हैं, उसके बाद डाइवर्जेंस कर्ल हमको पढ़ना है, तो ठीक है. उन्हें इनफैक्ट आई थिंक कि चैप्टर 3 जो है, हाँ चैप्टर 3 बेसिकली. अच्छा, इट सीम्स कि ईच लेक्चर दैट दे आर टीचिंग देयर इज एक्चुअली वन चैप्टर हियर. उरी बाप रे, दे विल बी टीचिंग क्वाइट फास्ट. Each lecture there is one chapter here, so I'll have to study one chapter every day. That's crazy, isn't it? पहले पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. In this text we shall restrict ourselves with this. ठीक है. Although we have considered the Cartesian system in chapter 1, we shall consider it in detail in this chapter. ठीक है. We should bear in mind that concepts covered in chapter 1 and demonstrated in Cartesian coordinates are equally applicable to other systems of coordinates, obviously. For example, the procedure of finding dot or cross product of two vectors in cylindrical system is same as that used in Cartesian system in chapter 1. Sometimes, if it is necessary to transform point and vectors from one coordinate system to another, sometimes it is necessary to transform points and vectors from one coordinate system to another, and the techniques for doing this will be presented in the presented and illustrated with examples. तो ये तो मस्त चीज़ दे रखी है यार. तो Cartesian coordinates xyz मेरा है. तो as mentioned in chapter 1, a point can be represented as xyz as illustrated in figure 1.1.
ranges of coordinate variables x, y, z are minus infinity to infinity, मतलब whole real numbers. A vector A in the Cartesian, otherwise known as rectangular coordinates, can be written as ax, ay, az, or ax I cap, ay, j cap, az, k cap. स्मॉल a, स्मॉल ay, स्मॉल az को मैं i, j k से ही लिखूंगा यार, ये बहुत फालतू टर्मिनोलॉजी हमको लगती है। ए क्या बोले हम भाई, where I, j, k are unit vectors along the x, y, z directions as shown in figure 1.1, तो परफेक्ट है मेरे लिए। अब आ जाते हैं सर्कुलर कोऑर्डिनेट, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो आर थीटा फाई होता है, नहीं आर थीटा जेड होता है, आर थीटा जेड, आर थीटा जेड, आर थीटा फाई तो स्फेरिकल होता है। तो यहाँ इन्होंने पी फाई जेड से लिखा, अरे यार पी फाई जेड से लिखा। The cylindrical coordinate system is very convenient whenever we are dealing with problems having cylindrical symmetry, ठीक है। जैसे कि एक ट्यूबलाइट से जो वो लाइट निकलती है उसमें cylindrical coordinate systems works very well. Represented as your r p phi z या r theta z and is shown in the figure 2.1. Observe figure 2.1 closely and note how we define each space variable. P is the radius of the cylinder passing through passing through the point P or the radial distance from z axis. Cool, ठीक है, ये है P तुम्हारा। फाई इज द एंगल, ये वाला जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेक कर रहा है, एंड z is z. Phi is called the azimuthal angle, is measured from the x axis in the xy plane, from x axis from the projection of p vector in xy plane. मतलब देखो p वेक्टर एक्चुअली p वेक्टर का प्रोजेक्शन नहीं कहना चाहिए, बिकॉज p वेक्टर हम लोग का इस पॉइंट से ही हम लोग लिख रहे हैं, तो p इसके अलाउंग स्लाइड भी कर दें तो भी यही आएगा, ठीक है। तो इट इज इन द एक्स वाई प्लेन, द एंगल इज फाई एंड z इज सेम एज दैट इन द सेम एज इन द कार्टेशियन सिस्टम। द रेंजेस ऑफ वेरिएबल आर p मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जाएगा, फाई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से 2 पाई जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन 2 पाई, ठीक है, क्योंकि 2 पाई तो 0 ही हो जाएगा, और z मेरा होल रियल नंबर्स हो जाएंगे। वेक्टर a in the cylindrical coordinates can be written as, so this vector a is ap a phi az, which is ap r cap, a phi phi cap और az k cap, ठीक है। ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। और आर कैप क्या है, तो आर ए पी तुम्हारा ये आर कैप ये हो गया, थीटा कैप ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, और के कैप तुम्हारा ये हो गया। अब तुम क्लियरली देख सकते हो ये तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को, राइट। ये तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है ही, और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या हुआ, ये एक स्टिल एक ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हुआ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं ना ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारा सर्कुलर सिलिंड्रिकल भी आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर प्रूव हो जाती है। वेर आर कैप थीटा फाई कैप या थीटा कैप या जेड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन r, theta and z directions as illustrated in figure 2.1. Note that a theta या theta cap is not in degrees, it assumes the unit vector of a, ठीक है। For example, if a force of 10 Newton acts on a particle in circular motion, the force may be represented as 10 theta cap Newton. In this case, a theta cap is in newtons, ठीक है। It is the unit vector of a है। नेक्स्ट, तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए आर स्क्वायर ए थीटा प्लस ए थीटा स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। Notice that unit vectors r cap, theta cap and k cap are mutually perpendicular because the coordinate system is orthogonal. AP points in the direction of increasing r, basically r cap points in the direction of increasing r, theta cap in the direction of increasing theta, and k cap in the positive z direction. तो ये important था। 10 AP डॉट AP जो बेसिकली r cap डॉट r cap क्या हो जाएगा 1, ठीक। सिमिलरली थीटा कैप डॉट थीटा कैप भी 1 और के कैप डॉट के कैप भी 1 हो जा रहा है। अब लेकिन आर कैप डॉट थीटा कैप और थीटा कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आर कैप ये सब 0। अच्छा, आर क्रॉस थीटा मेरा के हो जाएगा, थीटा क्रॉस के मेरा आर हो जाएगा, और के क्रॉस आर मेरा थीटा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बता देता है। तो आर कैप इधर आ गया, ये हमारा थीटा कैप अगर मान लें तो
आर क्रॉस थीटा ऐसे हो जाएगा तुम्हारा के कैप या जेड कैप, और थीटा क्रॉस के विल आर और के क्रॉस आर विल बी थीटा। तो ये तुम्हारा ये ही कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, के उल्टा डायरेक्शन में नहीं लिख सकते हैं। दिस इज बाय योर राइट हैंड वॉट एवर थंब रूल इट इज, ठीक है। और हम लोग राइट हैंड थंब रूल ही यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल ही हम लोग यूज़ करेंगे, विल नॉट बी रेफरिंग टू लेफ्ट हैंड थंब रूल अभी के लिए, because again it's a convention to use right hand thumb rule, or questions में भी वही use आप explicitly mentioned हो तब अलग बात है। खैर, where equations 2.6 C and 2.6 E are obtained in cyclic permutation, C और figure 1.9 हम लोग पढ़ ही चुके हैं। The relationship between the variables x, y, z of the Cartesian coordinate and those of the cylindrical coordinate r theta that are easily obtained as कि x तुम्हारा क्या हो जाएगा, r sin phi, सॉरी एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस होती है। और हम लोग जहाँ तक देखें तो यहाँ से देख सकते हो कि आर कॉस फाई एक्स है, आर साइन फाई जेड है, और सॉरी आर कॉस फाई एक्स है, आर साइन फाई वाई है और जेड जेड है। तो आर कॉस फाई, आर साइन फाई और जेड जेड है, ये अपना आ गया। और यहाँ से तुम देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पी स्क्वायर, तो पी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। फाई क्या हो जाएगा, तो वाई बाई एक्स अगर हम करें तो वो tan फाई है, तो फाई tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ये तो सही है। और z इक्वल जेड तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो ये कहानी भी हमने समझ ली। तो कार्टेशियन को सर्कुलर सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करना आ गया और उल्टा भी आ गया, सर्कुलर सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। Whereas equation 2.7 is for transforming a point from Cartesian xyz to cylindrical r theta phi coordinates. Equation 2.z is for r theta z to xyz transformations. Now relation between xyz and r theta z, तो आप देख सकते हो r cos phi मेरा x है, r sin phi मेरा y है और z मेरा z है। and the relationship between I j k and r cap theta cap और k cap are obtained very easily। जैसे आर कैप क्या है, ये है आर कैप, ठीक है, आर कैप ये है। अब इसका क्या है, ये आई कॉस फाई और जे कॉस 90 माइनस फाइव, जे साइन फाई। तो यार अच्छा, ए बी को मैं आई कॉस फाई प्लस जे साइन फाई लिख सकता हूँ, ये पॉइंट मैंने लिख दिया। और ए फाई मेरा होगा यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ये थीटा है तो ये फाई हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, ये जे कॉस फाई है प्लस जे कॉस फाई, और ये फाई है ना, तो इसका ऐसे ले लो, और ये 90 माइनस फाई, तो आई कॉस 90 में आई साइन फाई उसका नेगेटिव, तो माइनस आई साइन फाई प्लस जे कॉस फाई, तो आई कैप साइन फाई का नेगेटिव और प्लस जे कॉस फाई, तो ये ए फाई अपना डन है। और ए जेड तो तुम्हारा के कैप ही है, तो वो तो सिंपल ही है। अब इधर उल्टा सोचो, ए जेड ही है, और अगर मेरे को फाइंड करना है फॉर आई जे के, तब मैं क्या करूँगा, आई जे के का अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, तो ये आर कैप हो गया अपना, और अपना थीटा कैप कैसे होगा यार, ऐसे होगा कुछ, हाँ आर कैप मेरा ऐसे है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे नहीं होगा यार, फिर गलत नोटेशन हम लोग बना देंगे। ऊपर का व्यू देता ना तो बेटर रहता, बट चलो ठीक है। इस डायरेक्शन में आर मान लो, और इधर से ऐसे थीटा कैप मान लो, और ये फाई है, ठीक। तो यहाँ से मैं अगर आई कैप की बात करूँ विच इज़ योर ए एक्स वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा, आर कैप कॉस फाई और माइनस थीटा कैप साइन फाई, तो आर कैप कॉस फाई माइनस थीटा कैप साइन फाई, ए एक्स मेरा आ गया। और ए वाई मेरा हो जाएगा आर कैप साइन फाई प्लस थीटा कैप कॉस फाई, तो आर कैप साइन फाई प्लस थीटा कैप कॉस फाई, तो ए वाई भी डन है। तो ये तीन चीज़ हमने समझ ली कि कैसे आई जे के में हम लोग आर कैप थीटा कैप और के कैप में रिप्रेजेंट करें, और आर कैप थीटा कैप के कैप को आई जे के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये डी चीज़ें हमारी डन है, ठीक, ओके। ये क्या है भाई,
फिगर 2.3 कहाँ से आ गया? अच्छा, ज्योमेट्रिकली यहाँ से भी इन्होंने बता रखा है, विच इज़ द सेम थिंग जो हमने करी। खैर, तो ये पार्ट डन। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आई हैव थॉट ऑफ समथिंग अबाउट दिस बुक. आई हैव थॉट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस. आई हैव थॉट ऑफ ओनली डूइंग द एग्जांपल्स एंड स्किपिंग द क्वेश्चंस, बिकॉज ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और नोट्स पड़े हुए हैं, तो उसी को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे इस किताब से, नहीं तो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द ट्यूटोरियल्स इटसेल्फ। तो ठीक है, तो यहाँ थे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो फाइनली द रिलेशनशिप बिटवीन योर ए एक्स ए वाई ए जेड और ए आर ए थीटा ए जेड आर obtained by simply substituting equation 2.9 into equation 2.2 thus collectively। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, पहले तो 2.9 क्या है? दिस इज योर 2.9। अच्छा, 2.9 ही बोला है, इंटू 2.2। 2.2 कहाँ है? 2.2 ओके, ये है 2.2। ओके, समझते हैं क्या है ए वेक्टर को मैं। अच्छा अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि मैं ए वेक्टर को आर थीटा फाइव में रिप्रेजेंट करूं और ए पी ए फाइव और ए जेड को मैं रिप्लेस कर दूं बाई ए एक्स ए वाई ए जेड कुछ फॉर्म्स में। ठीक है, ये तो ऑब्वियस चीज़ है, बहुत आसान है, बता देते हैं कैसे। तो पहले तो इस पूरे को इरेज कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर मैंने ए एक्स लिख लिया, ये मेरा ए एक्स है, इधर मैंने अपना ए वाई लिख दिया और ये मेरा ए जेड हो जाएगा। अब आप देखो, ये आर कैप के अलॉन्ग मेरा ए पी है एंड इधर मेरा ए थीटा है और यही मेरा ए जेड है, तो ए जेड इक्वल ए जेड हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। अब मेरे को ए पी लिखना है ए एक्स ए वाई ए जेड के टर्म्स में, तो ए पी तो मेरा बहुत ऑब्वियसली ये होगा ए एक्स कॉस फाइव, ए एक्स कॉस फाइव प्लस ए वाई कॉस माइनस फाइव, ए वाई साइन फाइव, तो ए एक्स कॉस फाइव प्लस ए वाई साइन फाइव, ए एक्स कॉस फाइव प्लस ए वाई साइन फाइव आर कैप, डन। ए पी का टर्म ए पी आर कैप या ए आर कैप में ए आर मैंने कर दिया। इनफैक्ट आप ए पी को भी इसके थ्रू रिप्लेस जब करोगे तो आपका वापस से वही चीज़ आ जाएंगे और मिल जुला के एक से वाला टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ए थीटा बोला है, ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारा फाई इसके बराबर है, तो ए वाई कॉस फाइव और ए माइनस एक्स साइन फाइव, तो ए वाई कॉस फाइव और माइनस एक्स साइन फाइव, तो ये भी टर्म डन हो गया ए थीटा। और ए जेड तो ए जेड ही है, तो ए जेड के कैप, तो ये तुम्हारा ए पी ए फाइव और ए थीटा ए पी ए फाइव और ए जेड को मैंने, या आर थीटा फाइव का ए आर ए थीटा और ए जेड को मैंने ए एक्स ए वाई ए जेड के टर्म्स में लिख दिया और ये ए डन है। ओके, यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कर रखी है कि ए पी ए आर ए थीटा और ए जेड को कैसे लिखा जाएगा। तो ए जेड के बराबर है, ए पी मेरा ए एक्स कॉस फाइव वाई साइन फाइव और ए फाइव माइनस एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई कॉस फाइव, ये तो डन है अपना। अब चलो कुछ अच्छी चीज़ आए हैं हमारे सामने, मैट्रिक्स फॉर्म। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम ए एक्स ए वाई ए जेड टू ए पी ए फाइव ए जेड। तो यहाँ क्या बोला है कि ए पी ए फाइव ए जेड को अगर आपको ट्रांसफर मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड है, तो उसमें आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, आपको इधर आ जाओगे। ठीक, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, आपको ए पी ए फाइव ए जेड का इसमें फॉर्म्स आ जाएंगे। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस एज वेल। इस मैट्रिक्स को खोलोगे, इस मैट्रिक्स को इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स एंड दिस इज अ 3x1 मैट्रिक्स। द आंसर विल बी अ 3x1 मैट्रिक्स। चलिए, इसके लिए तो पेन कॉपी लगेगी, उसमें करते हैं, मतलब बिना पेन कॉपी के भी हो जाएगा। ये दिख ही रहा है कि ए एक्स कॉस फाइव प्लस ए वाई साइन फाइव प्लस जीरो इज योर ए पी। फिर दूसरा टर्म देख लेते हैं, माइनस एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई कॉस फाइव प्लस जीरो इज योर ए फाइव और ए जेड मेरा
0 0 1 होगा तो हाँ ए 0 0 ए जेड, तो 0 + 0 + ए जेड, आंसर हमारा ए जेड. That works well with this. So let's keep a copy with this now. क्या भाई, ये तो मेरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की चीज़ है. तो यार यहाँ हमने बहुत सही काम कर लिया. एक्स कॉस फाइव ये एक मैट्रिक्स याद कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक आई विल रिमेंबर इट बिकॉज बहुत ईजिली डिराइव हो जाता है. प्लस 20 सवाल तो आने ही एग्जाम में 3 घंटे के लिए, आराम से डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, तो ये अपना आराम से एक्स कॉस फाइव ए वाई साइन फाइव ए पी के बराबर माइनस एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई कॉस फाइव ए फाइव के बराबर और ए जेड के बराबर. अब इनवर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को अगर ए पी ए फाइव ए जेड को एक्स ए वाई ए जेड में करना है, तो मान लो ए पी ए फाइव ए जेड है, इसको करना है, तो ये तो ऑब्वियस है यार. कैसे करेंगे? ए एक्स लिखना है मेरे को. कैसे लिखोगे? ए पी कॉस फाइव और माइनस ए थीटा साइन फाइव. ए वाई क्या करोगे? ए पी साइन फाइव प्लस ए थीटा कॉस फाइव, और ए जेड तो ए जेड के बराबर है ही. तो देखो ए जेड का टर्म तो मेरा 0 0 1 ही होगा, 0 0 और ए जेड आ गया. और ये जो ए एक्स है ए पी कॉस फाइव प्लस ए फाइव साइन फाइव मेरा आ रहा है, लेकिन ये इनवर्स में देखो, इसका इनवर्स मेरे को करना होगा. तो मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट है बाई डिटर्मिनेंट है. अब इसका एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट करते हैं. उतना ज़रूरी एक्चुअली है नहीं, उसके बिना भी आप कर लोगे. मैं ए एक्स ए वाई और ए जेड ऐसे लिख दूँ. तरीका तो वही है कि आप इनवर्स ले लो, बट समझते हैं क्या कर सकते हैं. जहाँ तक मेरे को दिख रहा है ए पी कॉस फाइव माइनस ए थीटा साइन फाइव है ना, तो यहाँ कॉस फाइव लिख दो और माइनस साइन फाइव लिख दो और 0 लिख दो. तो ए पी ए फाइव और ए जेड में मेरा एक टर्म तो बढ़ गया. दूसरा टर्म ए वाई के लिए है विच इज़ दिस वाला, तो ए पी साइन फाइव प्लस ए फाइव कॉस फाइव. तो ए पी साइन फाइव प्लस ए वाई कॉस फाइव और यहाँ 0 और लास्ट वाला 0 0 1. तो इसका आंसर वुड बी कॉस फाइव माइनस साइन फाइव 0. तो कॉस फाइव माइनस साइन फाइव 0, कॉस फाइव माइनस साइन फाइव 0 होना चाहिए, साइन फाइव कॉस फाइव 0 और 0 0 1. ठीक है, तो ये इनवर्स आएगा इसका. और डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशंस 2.4 एंड 2.10 10. अच्छा, इनवर्स भी निकाल ही दिया इन्होंने, मैच कर लेते हैं. मेरा आंसर क्या है? कॉस फाइव माइनस साइन फाइव 0. ठीक है, साइन फाइव कॉस फाइव 0 0 0 1. परफेक्ट. तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स का बन गया. अगर मेरे को ए पी ए फाइव जेड में ए एक्स ए वाई ए जेड से जाना है, या ए एक्स ए वाई ए जेड में ए पी ए फाइव ए जेड से जाना है, तो आई फाउंड बोथ द थिंग्स. ठीक है. हाँ, इसके बाद बेसिकली मेरे को कन्वर्जन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन आने वाले हैं. वो एक मैंने देखा ट्यूटोरियल के अंदर. और मेरे को डाइवर्जेंस कर्ल पे क्वेश्चन है. और मेरे को मेनली तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पे क्वेश्चन है. क्विजेज में उस पर हो सकता है. एंड्स और मिड सेम के अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पे ही आएगा. एंड सेम तो खैर प्योर वो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स और दुनिया भर की मॉडर्न फिजिक्स उसमें आई हुई थी. ठीक है, विल मैच समथिंग. An alternative way of obtaining equations 2.14 and 2.15 is using the dot product. For example, your ax, ay, az, ap, fi, az, ये क्या है? I dot अच्छा I dot r cap, तो 1 into 1 into cos 5. Perfect, this is amazing. I dot r cap. अब ax dot a5, तो ये क्या हो जाएगा? I dot theta cap, तो 1 into 1 into 90 plus theta. Cos 90 plus theta is sin theta with a negative sign, because cos 90 plus theta यहाँ पे cos negative हो जाता है, राइट? यहाँ पॉजिटिव रहता था, प्लस प्लस, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा पे वो नेगेटिव. परफेक्ट. और ए एक्स डॉट ए जेड ये तो खैर 0 ही होता है. सिमिलरली ए जेड डॉट ए पी या ए जेड डॉट ए फाइव 0 ही होगा. ए जेड डॉट ए जेड 1 होगा. ए वाई डॉट ए जेड 0 होगा.
ए वाई डॉट ए फाई, ये एक अच्छा है। ए वाई डॉट ए फाई कैसे करेंगे? तो ए वाई डॉट ए फाई मेरा आएगा जे कैप डॉट थीटा कैप, तो वो तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस फाई हो जाएगा, तो कॉस फाई सही है। और ए वाई डॉट ए पी वो तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 - फाइव, मतलब साइन फाइव। ठीक है, तो ये तुम्हारा परफेक्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग है। कुछ भी याद इसमें करने की जरूरत नहीं है, ईजिली आ जाएगा कि ए एक्स है, पहले आर कैप के साथ कर दो, फिर फाई कैप के साथ कर दो, फिर टी कैप के साथ कर दो। क्या हुआ दादी? हाँ दे देना, बाहर रख दो, रख के। द डेरिवेशन ऑफ दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, जो ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं, हमने कर भी ली। ठीक है, नेक्स्ट स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा आर थीटा फाई है। चलो एटलीस्ट यहाँ पे पी नहीं यूज़ किया इन्होंने। आर थीटा फाई द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। यहाँ इनका जो था ये थोड़ा बदमाशी थी, कहाँ गया? पी फाई जेड, ठीक है, पॉइंट भी पी है और ये भी पी है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। पी फाई जेड बट आर थीटा फाई, ठीक है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स ये अपना शुरू हुआ। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जेई के टाइम तो यही यूज़ होता है ज़्यादातर, ये वाला। सबसे ज़्यादा तो कार्टेशियन यूज़ होगा मैथ में। अगर उसके बाद कोई यूज़ होता है तो वो होता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, जिसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह देते हैं। उसके अलावा हमारा वो ये सिलेंड्रिकल यूज़ हो जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन the spherical coordinate is the most appropriate when dealing with problems having a degree of spherical symmetry. A point P can be represented by r theta phi and is illustrated in figure 2.4. From figure 2.4 we notice that r is defined as the distance from origin to a point P, or the radius of sphere centered at origin and passing through P. Theta is called the co-latitude. ये important है। Co-latitude is the angle between the z axis and the position vector P. अब आप देखो, मैंने एक पॉइंट लिया P, अब इस P पे मेरा यहाँ पर एक ये आर कैप हो गया, इसके परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पर एक थीटा कैप है, और क्या दे रखा है? नहीं, ये फाई कैप है। तो थीटा ऐसे यहाँ से डिफाइंड है ना, तो थीटा इधर की तरफ ओपन होगा, तो ये अपना थीटा कैप है। और ये फाई है तो ये इस साइड जाएगा, तो ये तुम्हारा फाई कैप होना चाहिए था। ठीक है, r cap is defined in the direction of increasing r, theta cap is defined in the direction of increasing theta, and phi cap is defined in the direction of increasing phi. अब जो phi है वो measured है from positive x, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव z। यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, थीटा को पॉजिटिव z और फाई को पॉजिटिव x कर देते हैं। सॉरी, फाई को पॉजिटिव z और थीटा को पॉजिटिव x, गलत है वो। थीटा अपना z से मेजर होता है और फाई अपना पॉजिटिव x से मेजर होगा, और इससे आर थीटा फाई ये टर्म्स आ जाएंगे। अब वापस देख सकते हो कि यार ये दोनों अपने आप में परपेंडिकुलर है, ये दोनों ऑलवेज परपेंडिकुलर है, और ये तो तीनों के परपेंडिकुलर है ही। अगेन दिस इज एन ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये ऑर्थोगोनल ही है, ऑर्थोगोनल सिस्टम ही है, जो हमने पहले भी देख रखा है। तो इट इज, तो दिस थीटा इज कॉल्ड, जो जेड एक्सिस से मेजर्ड इज कॉल्ड द कोलैटिट्यूड, इज द एंगल बिटवीन द जेड एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर पी। फाई इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड इज द फ्रॉम द एक्स एक्सिस द सेम एजिमुथल एंगल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो सेम वही पी फाई जेड था ना वहाँ पे, वही वाला फाई ये है, और पी तो वही चीज़ है, बट अब नहीं, पी अलग हो गया एक्चुअली। पी हमारा हमेशा जेड एक्सिस से मेजर होता था, तो अब ये चीज़ें बदल गई हैं। फाई तुम्हारा एक्स से मेजर हो रहा है, थीटा तुम्हारा जेड से मेजर हो रहा है, और पी जो है वो ओरिजिन से हमारा अब ये है, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर एंटर्ड एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू पी। Theta is co-latitude angle between z axis and position vector p, and phi is measured from x axis, the same azimuthal angle in cylindrical coordinates. According to this definition, the ranges of जैसे r जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जाएगा, ये ऑब्वियस है। थीटा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से पाई जाएगा, और फाई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से 2 पाई जाएगा। इतना में काम हो जाएगा मेरा सारा कवर, क्योंकि थीटा 0 से पाई जाने की तो ज़रूरत है, 2 पाई जाने का क्या ज़रूरत है? वो तो मेरा इसको घुमा देंगे हम इधर, और अपने आप यहाँ से थीटा आ जाएगा इधर, तो इधर भी तुम्हारा मेजरमेंट हो जाएगा। मेरे को थीटा 0 से 2 पाई जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो ओवरलैपिंग सिचुएशन है।
A vector A in spherical coordinates may be written as your AR A theta A phi और AR R cap A theta theta cap A phi phi cap, ठीक है। यहाँ R cap थीटा कैप और फाई कैप ये तीन टर्म्स आएंगे, इनको कन्वर्ट भी करना सीख लेंगे। वेर where r cap, theta cap, phi cap are unit vectors along r, theta and phi direction, the magnitude of A is written as under root of ar square plus a theta square plus a phi square। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ ही रखा है। The unit vectors r cap, theta cap and phi cap are mutually orthogonal। ये हमने यहाँ पर अभी देख लिया कि तीनों आपस में mutually perpendicular factors हैं, they are mutually orthogonal। r cap being directed along the direction radius or in direction of increasing r, theta cap in the direction of increasing theta, phi cap in the direction of इंक्रीजिंग फाई। दस तुम्हारा आर डॉट आर कैप, थीटा डॉट थीटा कैप, फाई डॉट फाई कैप, ये सब वन आएगा। आर डॉट थीटा, थीटा डॉट फाई, फाई डॉट आर, ये सब जीरो है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, आर क्रॉस थीटा फाई आएगा, थीटा क्रॉस फाई आर आएगा और फाई क्रॉस आर थीटा आएगा। तो इसका मतलब अगर आर कैप ये है और थीटा कैप ये है तो आर क्रॉस थीटा मेरा फाई इसी डायरेक्शन में लेंगे यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। अदरवाइज ये नहीं वर्क करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं ले सकते, वो लेफ्ट हैंड थंब रूल हो जाएगा। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कह रहा है दिमाग में रखनी है, ठीक है। The space variables x, y, z in the Cartesian coordinates can be related to variables r, theta, phi of a spherical coordinate system from figure 2.5. It is easy to notice that। तो ये सारी चीज़ें प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे यार? सिंपल मैथ, सिंपल मैथ कैसे लगाएं? कुछ भी नहीं करना है, पूरा इरेज कर दो पहले तो इसको। आगे फिगर विगर दिया है? हाँ दिया है। अब ये देखो, ये अपना ये आर कैप हो गया मेरा, ये थीटा के डायरेक्शन पे थीटा कैप रख देते हैं, अच्छा थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, और ये फाई के डायरेक्शन में फाई कैप रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ मेरा आई आ जाएगा, ये जे हो जाएगा और ये के कैप हो जाएगा, राइट। सब चीज़ अब लिखना स्टार्ट करते, तो पहले तो इन्होंने आर थीटा और फाई लिखने बताया है। इसको तो मैं इजीली लिख सकता हूँ, कैसे कैसे तो देखो, आर जो होगा मेरा वो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला है ये पॉइंट पी का। एक तरीके से पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आर थीटा फाई या एक्स वाई जेड। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, ओके। तो मैं इसका प्रोजेक्शन नीचे लेता हूँ। अब मेरे को दो चीज़ देखनी है, एक तो ये डिस्टेंस मेरे को पता है, ये कितनी हो गई, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यार, और मेरे को ये इधर के तरफ ये पता है, ये जेड है। तो थीटा तो मेरा tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा। तो आर आ गया मेरा, थीटा आ गया, कैलकुलेटेड टू थिंग्स। अब फाई निकालने का तरीका भी वही है। फाई निकालने के लिए आई नो दिस थिंग, ये तो वाई है, आई नो दिस थिंग, ये एक्स है, तो फाई इज tan इनवर्स वाई बाई एक्स। डन। यहाँ देखिए आर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, थीटा tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड है, और फाई मेरा tan इनवर्स वाई बाई एक्स है। तो ये डन है अपना। या x की वैल्यू अगर मेरे को आर थीटा फाई में लिखनी है तो x मेरा क्या होगा, आर साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस फाई। तो आर साइन थीटा कॉस फाई मेरा x हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और z क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई। सिंपल सिंपल कहानी है, एकदम इजी पीजी। नहीं, आर कॉस थीटा हो जाएगा जेड, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा ये आ जाएगा, कॉस फाई एक्स है, साइन फाई वाई है, और आर कॉस थीटा जेड है, कहानी खत्म।
जेड आर कॉस थीटा यार, वाई मेरा आर साइन थीटा साइन फाई दे रखा है, एक्स मेरा आर साइन थीटा कॉस फाई दे रखा है, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 2.21 वी हैव एक्स वाई जेड को अगर मेरे पास दिया हुआ है, मेरे को आर थीटा फाई में कन्वर्ट करना है तो मैं कर लूँगा। और या फिर द पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जेड टू आर थीटा फाई, एंड इन इक्वेशन 2.22 अगर मेरे को आर थीटा फाई दिया है तो उसको मैं एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लूँगा। रिमेंबर आर हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है, थीटा एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस है, और फाई मेरा ये एंगल एक्स एक्स एक्सिस है एक्स वाई प्लेन के बीच में, एक्स वाई प्लेन में जो इसका प्रोजेक्शन आएगा और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल आएगा, फिर पॉजिटिव एक्स ये मेजर होता है और ये पॉजिटिव जेड से मेजर होता है। ठीक, तो ये आर कैप इस डायरेक्शन में है, थीटा कैप इस डायरेक्शन में और फाई कैप इस डायरेक्शन में, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिट वेक्टर्स आई जे के आर कैप थीटा कैप फाई कैप आर रिलेटेड एज फॉलोज। तो भैया बहुत आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ज़रा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ भी है। जहाँ तक मेरे को याद है, जहाँ तक मेरे को याद है फिज़िक्स के 101 के अंदर, ये तो चलो टेस्ट है, फिज़िक्स 101 के अंदर ये हम लोग को दिया हुआ था, बस ऐसे ही टीचर ने लिख किया है डिराइव विराइव कुछ नहीं किया, दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू डिराइव इट। ये बड़ी बदमाशी है। ठीक है, समझ सकते हैं कि एक जे क्वालिफाई करके आए बट इतना कुछ क्लास में कैसे डिराइव कर लेंगे? 50 मिनट की क्लास में उन्होंने एक चैप्टर का तो कर दिया वेरी फास्ट, फॉर एक्स स्पीड। यूनिट वेक्टर्स आई जे के और आर कैप थीटा कैप फाई कैप रिलेटेड कैसे हैं? तो यार इसको निकालना होगा मेरे को। ठीक, तो ये आर कैप वेक्टर है, इसको मेरे को आई जे के टर्म्स, या एक काम करना है इसमें आई जे के को पहले आर कैप और थीटा कैप फाई कैप में, ये तो खैर इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आर कैप जो है मेरा, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है आर कैप कॉस थीटा और एक है आर कैप साइन थीटा। तो आई कैप जो है उसके अंदर आर कैप का कंपोनेंट है साइन थीटा कॉस फाई। ओके, ठीक है। अब देखो थीटा, ये जो फाई कैप है ये इसके परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है, राइट, और थीटा कैप है वो इसके अंदर वाला वेक्टर है। आप देखो ये एंगल थीटा है, तो अभी ये एंगल जो यहाँ से वो मेजर कर रहा था वो थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ थीटा कैप का अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो एक तो साइन थीटा कंपोनेंट डाउनवर्ड आ जाएगा और मतलब इनटू द माइनस जेड में, और थीटा कैप कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और कॉस थीटा के बाद में वापस से कॉस फाई लिख दूंगा। बाकी मेरे पास एक फाई कैप का कंपोनेंट है, अब ये फाई कैप इधर घूम रहा है तो फाई कैप तो ऐसे ही था, ये फाई है तो यहाँ से फाई ये आ जाएगा और यहाँ से ये फाई आ जाएगा, तो इधर से नेगेटिव मेरा हो जाएगा फाई कैप माइनस साइन फाई। बस आई कैप मेरा डन है, विच इज आर कैप साइन थीटा कॉस फाई, ये टर्म ठीक है, थीटा कैप कॉस थीटा कॉस फाई ये भी ठीक है, माइनस साइन फाई फाई कैप ये भी ठीक है। अब जे कैप के टर्म को लिख लेते हैं, ये सब कोई रटने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग समय के साथ डिराइव करना सीख जाएंगे कि फास्ट फास्ट कैसे करते हैं इसको। बाकी अब आई कैप का टर्म आप वापस देख लो यार, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा है, तो आई सॉरी आर कैप साइन थीटा साइन फाई, थीटा कैप कॉस थीटा वो आ गया साइन फाई, और फाई कैप, अब देखो फाई कैप मेरा मैंने साइन फाई नेगेटिव में लिया था, अब यहाँ कॉस फाई पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा साइन फाई आर कैप परफेक्ट है, कॉस थीटा साइन फाई थीटा कैप परफेक्ट है, कॉस फाई फाई कैप परफेक्ट है। अब ए जेड ये जो के कैप वाला टर्म होगा ये कैसे लिखेंगे यार? तो एक तो आर कैप कॉस थीटा दिख रहा है क्लियरली, एक दिख रहा है माइनस थीटा कैप साइन थीटा, और फाई कैप का कोई टर्म है ही नहीं, हो गया काम। तो आर कैप कॉस थीटा सही है,
माइनस थीटा कैप साइन थीटा, सही है। तो ए एक्स ए वाई ए जेड यानी आई जे के टर्म को मैंने आर कैप थीटा कैप फाई कैप के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। अब आ जाते हैं आर कैप थीटा कैप फाई कैप को आई जे के टर्म्स में लिखने के लिए। आर कैप थीटा कैप फाई कैप को आई जे के टर्म्स में लिखना सीखना होगा। ओके, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। तो आर कैप को स्टार्ट करते हैं। आर कैप कैसे लिखेंगे, तो आई कैप मेरे पास है, उसका कॉस फाई ले लो। ठीक है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा ले लो। फिर जे कैप है, उसका कॉस 90 माइनस फाई यानी साइन फाई ले लो। ठीक है, ठीक है, और फिर कॉस 90 माइनस फाई साइन थीटा ले लो। और के कैप है मेरे पास, के कैप का कॉस थीटा ले लो, हो गया। फिर थीटा कैप मेरे पास है आर थीटा फाई, तो थीटा ही लिखते हैं नेक्स्ट। थीटा कैप मेरा थोड़ा सा अजीब है, इट इज़ नॉट गोइंग, इट इज़ गोइंग इनसाइड, बट ठीक है। ओके ओके, समझना होगा इसको थोड़ा सा कैसे इसको लिखूं। आई कैप का टर्म पहले ले लेते हैं, उसका कॉस फाई ले लिया। ठीक है, अब आई कैप कॉस फाई इस डायरेक्शन में, इधर थीटा है तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और जे कैप कॉस 90 माइनस फाइव साइन फाइव ले लिया और उसका थीटा है, अगेन कॉस थीटा हो गया। और के कैप का मैंने जो टर्म है ये है, और माइनस के कैप कॉस 90 माइनस फाइव सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और नेगेटिव, तो ये हो गया भाई। अब देखते हैं यार, साइन थीटा कॉस फाइव आई कैप सही है, साइन थीटा साइन फाइव जे कैप सही है, कॉस थीटा के कैप सही है, कॉस थीटा कॉस फाइव आई कैप सही है, कॉस थीटा साइन फाइव जे कैप सही है, माइनस साइन थीटा के कैप सही है, और लास्टली बचता क्या है यार, फाई कैप। तो फाई कैप को मेरे को तो लिखना आसानी लग रहा है, के कैप का कोई टर्म आएगा नहीं इसमें क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। तो इट इज़ इसको तो वैसे ही लिख सकते हैं, आई बिलीव, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर जो तुम्हारा फाई रहता था उसी के टर्म में लिख दो, आंसर आ जाएगा। बट उसको लिखना तो आना चाहिए ना। कैसे लिखें जी, ये फाई है और उसके परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली ये लाइन और ये लाइन तो सेम ही है, और इनके इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक सेकेंड, इस पर्टिकुलर लाइन के ये परपेंडिकुलर है। अब तो ऑब्वियस हो गया, जे कैप का साइन 90 माइनस फाइव हो जाएगा कॉस फाइव, और माइनस आई कैप का साइन फाइव, कॉस फाइव जे कैप कॉस फाइव और माइनस आई कैप साइन फाइव, तो माइनस साइन फाइव आई कैप विच इज़ परफेक्ट, और कॉस फाइव जे कैप विच इज़ ऑल्सो परफेक्ट। तो यहाँ आर कैप थीटा कैप और फाइव कैप को मैंने आई जे के टर्म्स में भी लिख लिया। डन है। तो ये एक हेवी चीज़ लग रही थी बट बहुत ही ईजी है। आर कैप थीटा कैप फाइव कैप आर थीटा फाइव एक्स वाई जेड, सब आर थीटा फाइव को एक्स वाई जेड के टर्म्स में, एक्स वाई जेड को आर थीटा फाइव के टर्म्स में, आई कैप जे कैप के कैप को आर कैप थीटा कैप फाइव कैप के टर्म्स में, आर कैप थीटा कैप फाइव कैप को आई कैप जे कैप के कैप के टर्म के कैप के टर्म्स में हमने लिख लिया है। रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आर थीटा फाइव और पी फाइव जेड, ठीक है, जिसको हम आर फाइव जेड अब से बोलेंगे। तो आर थीटा फाइव आर फाइव जेड और आर थीटा फाइव स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर थीटा फाइव इज स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर फाइव जेड इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स वाई जेड तो ऑब्वियस है, आर थीटा फाइव में आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, थीटा इज एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर, अजीमुथल एंगल कहते हैं, और फाइव मेरा प्रोजेक्शन जो होगा आर का ऑन द एक्स वाई प्लेन एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है पॉजिटिव एक्स से मेजर होगा। आर मेरा जेड एक्सिस से जो आर बनेगा, फाइव मेरा यही जो सेम एंगल एक्स एक्सिस और उसका प्रोजेक्शन के बीच में होगा, पॉजिटिव एक्स से मेजर होता है, जेड मेरा जेड है। ठीक है भाई, ये ओवरऑल हमने लिख दिया। तो इस तरह पूरे जितने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स थे ये समझ लिए। अब आगे क्या है, आगे कुछ कुछ इसी की चीज़ें हैं, कन्वर्जन का और फिर क्वेश्चन है, राइट, यस क्वेश्चन, फिर कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस। ओहो
सरफेसेस भी पढ़ने मिलेगा. दिस विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इन द चैप्टर ओवर फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमें अभी करने नहीं है. एंड देन विल बिगन विद वेक्टर कैलकुलस. तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली एक चैप्टर एक दिन में करना. इट विल बी लाइक 1 घंटे का मेरे को ये रीडिंग करना होगा, फिर क्वेश्चंस जो हम लोग को ट्यूटोरियल्स में दिए तो उसके साथ भी मैनेज हो जाएगा. बट लेट्स कीप इट अहेड थोड़ा सा. सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, ऐसे अरे भाई कौन फाड़ दिया इसके अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड चैप्टर तो खैर वही है ना. थर्ड चैप्टर तुम्हारा एलिमेंट्स लेना सिखाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर. और क्या क्या सिखा रहा है. लाइन सरफेस इंटीग्रल्स. ये तो खैर हम जस्ट कल ही रात से पढ़े थे लाइन सरफेस इंटीग्रल्स अपने ट्यूटोरियल के अंदर नोट्स के अंदर. बहुत हाँ डेल ऑपरेटर यार. डेल ऑपरेटर लाप्लाशियन भी होगा आगे. ग्रेडियंट्स तो ठीक है. डेल का पहले पहले डेल का इन्होंने पूरा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दी. डाइवर्जेंस का मीनिंग बता रहे हैं अभी. वो बाल वाला है ना. और क्या नहीं वो तो कर्ल था. डाइवर्जेंस अलग चीज़ है. फिर नेवियर स्टोक थ्योरम. ये बहुत अमेजिंग चीज़ है नेवियर स्टोक्स थ्योरम. आई थिंक नेवियर स्टोक्स थ्योरम मैंने पढ़ रखी है. जे के टाइम पढ़ी थी. हाँ 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 नेवियर स्टोक्स थ्योरम मैंने पढ़ रखी है. बहुत डीप में नहीं गया था बट हाँ पढ़ी तो है. थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी. थोड़ी थोड़ी पढ़ी तो थी. लाप्लाशियन ऑपरेटर डेल टू का वाला. ये तो मस्त चीज़ है. ये तो उसके अंदर आती है. क्या कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. बहुत अमेजिंग चीज़ है. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर फील्ड्स. खैर ये तो है ही सिंपल. उसका चैप्टर ये भी खत्म हो जाएगा. सम पॉइंटलेस क्वेश्चंस. ओके अच्छा एक सेकेंड. ये तो क्वेश्चन तो मेरे उसमें भी है ट्यूटोरियल में भी है. अब समझा कहाँ से छापा जा रहा है कुछ. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. टेक रिस्क. इफ यू विन यू विल बी हैप्पी. इफ यू लूज यू विल बी वाइज. गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं क्या. थोड़ा डार्क हो गया. चलो वापस. यहाँ से क्या हो देखते देखते. यस यस कहाँ थे. नहीं डेल ऑपरेटर. डेल ऑपरेटर तो पुरानी थी. वेक्टर कैलकुलस के पहले अभी सिस्टम्स पढ़ रहे थे ना. हाँ सिस्टम 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 थोड़ा ये रहा. कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए जो होते हैं वो एक्स ए वाई ए जेड है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट्स के अंदर. और आर थीटा फाई विच इज योर स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट्स. उसमें ए आर ए थीटा और ए फाई है. दे आर रिलेटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2.23 इनटू इक्वेशन 2.23 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन 2.2 एंड कलेक्टिंग द टर्म्स. ठीक है हो जाएगा. हम लोग अभी कर भी लेते हैं इसको. पहले इन्होंने कहा है कि ए आर ए थीटा ए फाई को ए एक्स ए वाई और ए जेड से रिप्लेस कर दो. तो चलो वापस ए एक्स ए वाई और ए जेड के तो यहाँ पर क्या कहा है कि यार ए आर ए थीटा ए फाई को मेरे को एक्स ए वाई जेड के टर्म्स में लिखना है. ठीक है दिस सीम्स काइंड ऑफ ऑड बट ठीक है. समझते 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 हो जाएगा हो जाएगा. वेल बहुत इजी है. ए आर को मैं ए एक्स कॉस फाई कॉस 90 माइनस साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस 90 माइनस फाइव साइन फाइव और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख देते हैं प्लस ए जेड कॉस थीटा. ठीक. फिर अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ. ए थीटा की बात करते हैं. आर थीटा फाई है ना तो ए थीटा की बात करते हैं. अगेन ए एक्स कॉस फाई इधर के तरफ आ रहा है मेरा. इधर के तरफ. और कोस थीटा आ जाएगा प्लस ए वाई कॉस 90 माइनस फाइव साइन फाइव फिर से कॉस थीटा आ जाएगा. और ए जेड को मैं ए जेड कॉस 90 माइनस थीटा
ए जेड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये अपना ऐसे है ना साइन थीटा, तो उसका नेगेटिव, अरे मेरे भाई ये जो इसके परपेंडिकुलर और थीटा भी तो इसी के परपेंडिकुलर है जी। थीटा कैप कहाँ गया, हाँ थीटा कैप इसी के परपेंडिकुलर तो है, तो वही चीज़ तो माइनस ए जेड थीटा, और ए फाई आ जाएगा मेरा। ए फाई कैसे आएगा यार, ए फाई इज ए एक्स माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई साइन 90 माइनस फाई कॉस फाई, या इधर भी लिखकर फाई कर सकते हो ना, कॉस फाई हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी आ गई होगी ए एक्स साइन थीटा, ए एक्स साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, ए वाई साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, ए जेड कॉस थीटा, ठीक है, ए जेड कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है, ए वाई कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है, माइनस ए जेड साइन थीटा, ठीक है, ये आर कैप, ये आर कैप लिख दिया, ये थीटा कैप लिख दिया, और माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई फाई कैप होगा, ठीक है, परफेक्ट है। From this we obtain AR as AX sin theta cos phi, AY sin theta sin phi plus AZ cos theta, A theta as AX cos theta cos phi, AY cos theta sin phi minus AZ sin theta, और A phi मेरा minus AX sin phi plus AY cos phi। ये सब तो मस्त चीज़ है, मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, बहुत इजी है। AX AY AZ को AR A थीटा A phi के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो AR A थीटा और A phi लिख दो, और बाजू में अभी जो रिजल्ट्स निकाले हैं उसका थ्रू हम लोग आंसर लिख देंगे की कर पेंदा। ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे है, ओके। यहाँ पर कॉस फाई साइन थीटा आ जाएगा, फिर साइन फाई साइन थीटा आ जाएगा, फिर कॉस थीटा आ जाएगा, फिर कॉस फाई कॉस थीटा नीचे वाली रो पे, फिर साइन फाई कॉस थीटा आ जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा आ जाएगा, फिर माइनस साइन फाई कॉस फाई और ज़ीरो, ये अपना डन है। तो ये तो सेम चीज़ इन्होंने लिख दी है, ठीक है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो ए आर ए थीटा ए फाई को एक्स ए वाई जेड में अगर ऑब्टेन करना है तो कैसे करेंगे यार। अच्छा आप बोल रहे हैं ए एक्स ए वाई जेड को लिखो ए आर ए थीटा ए फाई के टर्म, ठीक है यार लिख देंगे, क्या ही जा रहा है हमारा, वापस से आओ। तो ए आर साइन थीटा कॉस फाई, राइट, ए आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस ए थीटा कॉस थीटा कॉस फाई और ए फाई साइन फाई का नेगेटिव, ए वाई जो है मेरा ए आर साइन थीटा साइन फाई, ए थीटा कॉस थीटा साइन फाई प्लस ए फाई साइन फाई, और ए जेड ए आर कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा, और फाई का टर्म आएगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब अपनी जादू वाली फॉर्म में लिखूँ, जो मैट्रिक्स फॉर्म है जो मेरे को पसंद आई सबसे ज़्यादा, वो है कि यार ए एक्स ए वाई ए जेड को मेरे को अगर लिखना है 3x3 और 3x1 मैट्रिक्स करके, तो ए आर ए थीटा ए फाई यहाँ लिख देते हैं, अब बीच वाली मैट्रिक्स बना देते हैं। अब कैसे बनेगी यार, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई और माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई, और थीटा का साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, साइन फाई, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ज़ीरो। क्या ये सही है, साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, साइन फाई, अच्छा कॉस फाई आ रहा है यहाँ पर, क्या यार ये, ओ ओ ओ ओ ओ यार मैं ए फाई का कॉस फाई लिखना भूल गया, मैंने साइन फाई लिख दिया लगता है, ए फाई कॉस फाई होना चाहिए, सही है ए फाई कॉस फाई, तभी ना इसके डायरेक्शन में आएगा ए फाई कॉस फाई, तो यहाँ कॉस फाई आएगा। अच्छा है, कैलकुलेशन एरर बस नहीं कर देनी है यहाँ, कॉस फाई
ओके, cos theta minus sin theta 0, ठीक है, this is perfect. Alternatively, we may use equations 2.27, 2.28 using dot product. For example, r cap का dot with x cap. हाँ यार, ये तो वही होगा, cos थीटा इंटू cos ए आर ए थीटा वाले की बात चल रही है. ओके, तो ये अपना हो जाएगा साइन थीटा cos फाइव, ए आर का डॉट विथ ए वाई, साइन थीटा साइन cos 90 माइनस फाइव, तो साइन थीटा साइन फाइव, ए आर का डॉट विथ ए जेड, हमारा हो जाएगा cos थीटा, और ए वाई का डॉट ए थीटा का डॉट विथ ए एक्स, तो ए थीटा का डॉट विथ ए एक्स विल बी थीटा, उसके परपेंडिकुलर 90 थीटा, उधर थीटा, तो cos थीटा cos फाइव, और उसका भी एक सेकेंड, डॉट विथ ए एक्स है ना, तो 1 इंटू ए थीटा का हमको cos थीटा कंपोनेंट लेना होगा, और cos फाइव आएगा. नेगेटिव क्यों, नेगेटिव थीटा कैप, अच्छा ए वाई है मेरे भाई, ए वाई होगा ना, नहीं, ए थीटा का डॉट विथ ए एक्स है, ए थीटा का डॉट विथ एक्स है, एक तो थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा वाला गया होगा हमसे, थीटा कॉस थीटा कॉस फाइव आ रहा है यार, ये तो नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ए थीटा एक्स, और ए थीटा ए बाई मेरा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस साइन फाइव, कॉस 90 माइनस फाइव साइन फाइव हो जाएगा. ओके जी, ओके. और ए थीटा डॉट ए जेड, वो तो साइन ए थीटा डॉट ए जेड हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा. अब ए फाइव का डॉट विथ ए एक्स, दिस विल बी cos 90 प्लस फाइव माइनस साइन फाइव. ए फाइव का डॉट विथ ए वाई, फाइव cos फाइव हो जाएगा, और ए फाइव का डॉट विथ ए जेड 0 हो जाएगा. बस ए थीटा का डॉट विथ ए एक्स मेरे को अभी तक नहीं आया. ए थीटा का डॉट विथ ए एक्स क्यों नेगेटिव हो रहा है, काहे जी नेगेटिव हो गए तुम, ए थीटा का डॉट विथ ए एक्स, ए थीटा का डॉट विथ ए एक्स कैसे आएगा, एक टर्म तो तुम्हारा हो जाएगा थीटा कैप का, अच्छा ये थीटा है और ये थीटा है, थीटा कैप कॉस थीटा, और एक हो जाएगा थीटा कैप साइन थीटा वाला तो इनटू द प्लेन माइनस जेड, तो उसका डॉट तो जीरो ही आएगा. अब थीटा कैप कॉस थीटा जो है, इसका कंपोनेंट थीटा कैप कॉस थीटा आई कैप कॉस फाइव. तो यार यहाँ पे थोड़ा सा हमको, और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसको हाईलाइट कर लेंगे. ऑल तो हमको लग तो रहा है ये सही है, बिकॉज सिमेट्री हमको बहुत मज़ेदार लग रही है, और हम तोड़ना नहीं चाह रहे, इट इज़ ब्यूटीफुल. So something might be an error, कुछ देख लेंगे बाद में. For the sake of completeness, it may be instructive to obtain the point or vector transformation relationships between cylindrical and spherical coordinates using figure 2.5. अभी हम नहीं कर रहे, बहुत lengthy होगा. And 2.6, where phi is held constant since it's common both systems, this will be left as an exercise. See problem 2.9. अच्छा आगे आएगा. Note that in point 2 or vector transformation, the point or vector has not changed. अच्छा, it is only expressed differently, and this is obvious. Thus, for example, magnitude of a vector will remain the same after the transformation. This may serve as a way of checking the result of transformation. The distance, correct ही नहीं, the distance between 2 points is usually necessary in EM theory, electromagnetic theory के अंदर. The distance d between 2 points with position vector r1 r2 is generally given by modulus of r2 by r1 vectors. Okay जी. यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात अगर करें, तो ये तो आर थीटा जेड, नहीं आर फाइव जेड और आर थीटा फाइव, यही होता था, आर फाइव जेड और आर थीटा फाइव. तो कॉपी पेन पे करते हैं, क्या ही करना तो होगा ही. यस, एक मैंने ले लिया आर कैप, ठीक है, दिस इज योर आर कैप. अब मैंने ले ली इधर यहाँ से फाइव, ये हो गया मेरा फाइव कैप. अब आप देखो कोई ऊपर वाला पॉइंट है, उसके लिए ये हमारा हो जाता है, ये पी लिखने दो, पी ही ठीक था, और आर, और ये थीटा है. थीटा कैप ऐसे हो गया, फाइव कैप को वैसे का वैसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं,
ठीक। और यहाँ से मेरा आर कैप इधर की तरफ निकलेगा, ये पी कैप, फाई कैप, और ये तुम्हारा के कैप आ ही जाएगा। अब ये जो पॉइंट पी है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, आर थीटा फाई और पी फाई जेड कैप लिखने दो, जेड। ठीक है मेरे भाई। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को तुम कन्वर्ट करो यूनिट वेक्टर्स को। तो जैसे जो आर कैप का यूनिट वेक्टर होगा उसको मेरे को टर्म्स में लिखना होगा। वो के कैप का कॉस थीटा है, सॉरी जेड कैप का कॉस थीटा है, जेड से लिख रहे हैं ना उसको। और जो पी कैप है उसका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है। और जो फाई कैप है फाई कैप है उसको मेरे को लिखना पड़ेगा इसमें, राइट। ये फाई है, इसके परपेंडिकुलर है ना, ये फाई है, ये 90 माइनस फाई, ये फाई है। तो और फाई कैप जो है उसका कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, नहीं कॉस फाई साइन थीटा। अब मेरे से बोला है थीटा कैप भी बता दो, तो ठीक है यार थीटा कैप भी बता ही देते हैं। थीटा कैप मेरा इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मेरा जो थीटा कैप इधर मैं लिख दूँ तो ये थीटा आ जाएगा और ये 90 माइनस थीटा, तो पी कैप कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। जेड कैप मेरा कॉस थीटा आएगा विद अ नेगेटिव साइन, नहीं जेड कैप साइन थीटा आएगा माइनस जेड कैप साइन थीटा आएगा, और बचता है फाई कैप। अब फाई कैप को कैसे लिखें? ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा है अभी भी, क्योंकि अगेन इट्स नॉट मेकिंग सेंस। बिकॉज ऊपर से अगर देखें तो ऐसे मेरा है, ये फाई है और ये पी है, और फाई कैप इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये एंगल फाई है और ये एंगल फाई है, तो फाई कैप कॉस फाई तो ये हो गया इसके अलोंग, और इसका मेरे को इसके अलावा तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आया। Oh god damn, down. Oh. Meter down, made it down. यार पी कैप हो गया, के कैप हो गया, बस फाई कैप बचता है ना। कॉस फाई तो ठीक है, इधर आ जाएगा, और एक साइन फाई भी मैंने ले लिया कि चलो इधर आ जाएगा। अब इस कॉस फाई कॉस 90 माइनस थीटा, फाई कैप ना ऐसे सामने वाले आ जा रहे हैं, अब उसमें क्या करें? कोई अलग तरीका होगा इसका तब फिर, क्योंकि फाई कैप को मैं लिख तो ले रहा हूँ कि फाई कैप उधर आ जा रहा है, बट आर कैप को कैसे लिखें उसके, तो आर कैप के टर्म्स में चलो पी कैप और हीटा कैप फिर से करना होगा ये पूरा। कूलम एक सर्कल बनाओ, फिर नीचे आ जाओ, एक और सर्कल बना लेते हैं। अब क्या है ना कि मतलब समझ में आ रहा है कि देखो पी ऐसे है, पी कैप, और फाई कैप मेरा इनसाइड है। अब थोड़ा सा बेटर होगा, और ये फाई है, ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा मज़ा आएगा। और इधर तुम्हारा जेड कैप आ जा रहा है। अब इधर मेरा पॉइंट जो पी है वो आर कैप से मैं डिनोट कर रहा हूँ,
तो ये एंगल जो है ये थीटा हो गया। इधर से जो मेरा ये थीटा कैप हो जाएगा, और अगेन फाई कैप इनटू द प्लेन में दोनों साइड बना दे रहा हूँ, अज्यूमिंग फाई जो है वो 90 डिग्री। थोड़ा बहुत उसका अजम्पशन है, बाकी तो सेम ही आएगा एंगल, उनको कोई मतलब है नहीं। अब इसके अंदर क्या है ना, थोड़ा फिगर ध्यान से देखने में आ रहा है। तो आर कैप को मैं जेड कैप कॉस थीटा तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। और पी कैप कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इतना तो लिख ही सकते हैं यार। अब बचता क्या है, बचता है फाई कैप। अब फाई कैप का कोई टर्म ही नहीं आएगा ना यार आर कैप के अलोंग, बिकॉज फाई कैप आर कैप और थीटा कैप ये तो परपेंडिकुलर हैं, तो इतना ही रहना था। वही तो, फिर थीटा कैप मेरा क्या हो जाएगा, अगेन फाई कैप का कोई टर्म नहीं आएगा, बट जेड कैप का टर्म आएगा, माइनस जेड कैप साइन थीटा। और पी कैप का टर्म क्या हो जाएगा, तो यार ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो इसका नीचे ये है तो पी कैप कॉस थीटा हो गया। और बचता है क्या, फाई कैप, तो वो तो अपना फाई कैप ही है। तो ये आर थीटा फाई को मैंने पी थीटा पी आर थीटा फाई को मैंने पी फाई जेड के टर्म्स में लिख दिया। अब पी कैप को आर थीटा फाई के टर्म्स में लिखते हैं, तो वो तो आर कैप साइन थीटा हो गया। फाई कैप तो परपेंडिकुलर ही है पी कैप के, तो उसका आएगा नहीं टर्म। और थीटा कैप कॉस थीटा हो गया, ये तो डन ही है। अब आ जाओ फाई कैप को, वो तो फाई कैप ही है। और जेड कैप मेरा आर कैप कॉस थीटा माइनस थीटा कैप साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह मेरा पी फाई जेड को मैंने आर थीटा फाई और आर थीटा फाई को मैंने पी फाई जेड के टर्म्स में लिख दिया। डन, यूनिट वेक्टर्स आ गए। और कुछ करने बोला था क्या, नहीं और कुछ करने नहीं बोला है। अब पॉइंट्स अगर लिखने हैं तो उसको लिख ही सकते हैं, बाकी कन्वर्जन अगर मेरे को करना है ए आर ए थीटा ए फाई को, तो कुछ नहीं, जेड कैप को ए जेड से, पी कैप को ए आर ए पी से, और फाई कैप को ए फाई से, आर कैप को ए आर से, ए थीटा को ए थीटा, ए थीटा कैप को थीटा ए थीटा से, और फाई कैप को ए फाई से रिप्लेस कर देंगे, वो आ जाएगा। फिर अपना एक सिंपल सा मैट्रिक्स भी बना ही लेते हैं तब तो ए आर ए थीटा और ए फाई को अगर मेरे को लिखना है एक 3x3 मैट्रिक्स के टर्म्स में ऑफ ए पी ए फाई और ए जेड, नहीं हाँ ए जेड, इतना टर्म्स पी फाई जेड और आर थीटा फाई। ए पी मेरा साइन थीटा आ जाएगा यहाँ, तो पहले साइन थीटा, और ए फाई मेरा कॉस थीटा, और ए जेड मेरा ज़ीरो, नहीं 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 नहीं, ए फाई मेरा ज़ीरो है और ए जेड मेरा कॉस थीटा, ठीक है। फिर ए थीटा में ए पी जो पी कैप है वो कॉस थीटा हो जाएगा, फाई कैप है ही नहीं ज़ीरो, और जेड वाला माइनस साइन थीटा। और फाइनली ए फाई के टर्म्स में वो ए फाई ही है, तो 0 1 0, ठीक है। एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए पी ए फाई ए जेड को ए आर ए थीटा ए फाई के टर्म्स में, ए आर ए थीटा ए फाई के टर्म्स में अगर मेरे को लिख लेना है, तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आर कैप का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ए आर का साइन थीटा आ रहा है, तो ए थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और बाकी ज़ीरो। फाई वाले में ए आर का नहीं आ रहा है, ए थीटा का नहीं आ रहा है, ए फाई आ रहा है, और ए जेड में ए आर का कॉस थीटा हो जाएगा, ए थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इसका ज़ीरो। वाह जी, मैट्रिक्स भी डन हो गई, दो मैट्रिक्स भी हो गई। इसको फिर ऐसे भी तो लिख लो, क्या कहते हैं, ए आर ए थीटा ए फाई आर कैप का डॉट विथ योर पी कैप, आर कैप का डॉट विथ योर फाई कैप, एंड आर कैप का डॉट विथ योर जेड कैप, पी थीटा कैप का डॉट विथ योर पी कैप, थीटा कैप का डॉट विथ योर फाई कैप, थीटा कैप का डॉट विथ योर जेड कैप, फिर थीटा कैप का नहीं, फिर
फाई कैप का डॉट विथ योर पी कैप, फाई कैप का डॉट विथ योर फाई कैप, और फाई कैप का डॉट विथ योर जेड कैप टाइम्स ए पी ए फाई ए जेड। तो पूरी कहानी अब समझ में आ गई। डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में भी मैंने लिख दिया इसको, ए आर ए थीटा ए फाई को ए पी, और ए पी ए फाई ए जेड को ए आर ए थीटा ए आर ए थीटा ए फाई के टर्म्स में, पी फाई जेड को मैंने आर थीटा फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करने का मैंने डॉट प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स भी बना दिया। तो एवरीथिंग इज डन, लेट्स मूव ऑन। तो यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो ये चलो कार्टेशियन हो गया, सिलिंड्रिकल में आप रिप्लेस करके कर सकते हो और स्फेरिकल में भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। 2.1 जो है तो एक्सरसाइजेज है, देख लेंगे इसको बाद में। फिर क्या है, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस, इसको अभी हम लोग करेंगे एंड देन वील एंड दिस, ठीक है, देन वील एंड दिस। तो 2 ही पेज बचा है ना, खत्म हो जाएगा। Surfaces in Cartesian, cylindrical or spherical coordinate systems are easily generated by keeping one of the coordinate variables constant and allowing the other two to vary. In the Cartesian system, तो basically क्या है ना कि surface बना रहे हैं Cartesian, cylindrical, spherical coordinate में, कैसे generate करेंगे? तो one of the coordinate variables has to be constant, allowing the other two coordinate variables to vary. In the Cartesian system, if we keep x constant and allow y and z to vary, an infinite plane is generated, ठीक है, तो ये yz plane generate होगा, thus we could have in infinite planes x constant, y constant, z constant, so which are perpendicular to the your x y z axis respectively, ठीक है। x constant वाला x के perpendicular होगा, y constant वाला y के और z z के, as shown in figure 2.7, very obvious। x constant वाला जो है वो कौन सा है, ये वाला है x constant, y constant, z constant, ठीक, ये सब तो चीज़ें हैं, ठीक है। Okay, as shown in figure 2.7, the intersection points of two planes is a line, that is obvious। For example, x constant y constant का एक line बन रहा है, x constant और y constant वाले का, yes, and is the line RPQ, x constant ये है, y constant हमारा ये है, इन दोनों का intersection ये है RPQ, parallel to z-axis. The intersection of 3 planes is a point, which is the point P. For example, is the point P x y z. Thus, we may define point P as the intersection of 3 orthogonal infinite planes. ये एक अच्छा definition है. We may define point P as the intersection of 3 orthogonal infinite planes. If P is 1 minus 5 3, then P is the intersection of x equal 1, y equal minus 5 और z equal एंड z इक्वल 3 हो जाना चाहिए। क्या वही दे रखा है, x इक्वल 1, y इक्वल माइनस 5 और z इक्वल 3, यही दे रखा है। ऑर्थोगोनल सर्फेसेज इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कैन लाइकवाइज बी जनरेटेड। द सराउंडिंग द सर्फेसेज आर योर p कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, z कांस्टेंट। तो जैसे p कांस्टेंट कर दिया तो p कांस्टेंट करने पे मेरे को एक सर्कल जनरेट हो जाएगा, राइट। अगर मैं सिलिंड्रिकल में सोचूं तो मेरा p कांस्टेंट है, बट नहीं पी कांस्टेंट है, फाई और जेड वेरिएबल है। तो फाई को एक बार घुमा के पूरा देख लेते हैं, तो वो सर्कल बना, और जेड घुमा के एक सिलेंडर बन जाएगा। फाई कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, पी में इधर से इधर जा सकता हूँ, ऊपर नीचे एक प्लेन बन जाएगा। नहीं पी में पीछे नहीं जा सकता ना, फाई कांस्टेंट है, 0 से 2 पाई है, तो एक इधर की तरफ कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं और ऊपर नीचे, तो एक हाफ प्लेन टाइप की चीज़ बनेगी। और z कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर तक z कांस्टेंट है कि उस z पे ही हमें सोचना है। ओके जी, तो मैं p पूरा घुमा सकता हूँ, तो उस z में एक प्लेन बना लिया, और फाई किसी भी एंगल में, तो एक उस टाइप का प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये z कांस्टेंट वाली चीज़ समझ में आ गई मेरे को, फाई कांस्टेंट भी और p कांस्टेंट भी, ठीक है। ओके, as illustrated in figure 2. Where it is easy to observe that p constant is a circular cylinder and phi constant is semi-infinite plane, half plane ही बोल रहा था, with its edge along the z-axis, and z constant is the same infinite plane as the Cartesian system. When two surfaces meet, it is either a line, जैसे कि ये और ये मीट करेंगे तो लाइन बनेगी, लेकिन ये और ये मीट कर रहे हैं तो ये भी लाइन ही बन रही है, ये और ये मीट कर रहे हैं तो इट में इज अ सर्कल। द z constant p constant
is so z constant, p constant is circle of qpr of your radius p, where z is constant, phi is constant, phi equal constant, whereas z equal constant ये वाला, और phi equal constant is semi infinite line, ये वाली जो तुम्हारी बनेगी अंदर तक z तक ऐसी कुछ लाइन बनेगी. A point is वैसे सेमी इनफाइनाइट मतलब इधर की तरफ कहीं जा रही है. A point is an intersection of three surfaces in this equation 2.37. जैसे जो P है वो तुम्हारा P phi Z का होगा, तो वो 2 phi को 60 है ना, तो 180 से मतलब पाई बाई 3 60 होता है ना, पाई बाई 3. हाँ, तो 2 पाई बाई 3 5 इसका कोऑर्डिनेट्स कर देंगे. इज द पॉइंट P 260 डिग्री 5 या 2 पाई बाई 3 5, वो रेडियंस में बेटर रहेगा. ऑर्थोगोनल नेचर ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एविडेंट बाय कंसीडरिंग द सी सर्फेसेस r थीटा फाई कांस्टेंट करके, r कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट. तो देखो बहुत ऑब्वियस है यार, r कांस्टेंट कर दो, थीटा फाई घुमा दो, तुम्हारा स्पेयर बन जाएगा. अब मैं क्या करता हूँ कि इन थीटा कांस्टेंट कर लेते हैं. तो एक थीटा कांस्टेंट है, उसमें r कैसे भी घुमा सकते हैं और फाई जो है वो कैसे भी घुमा सकते हैं. तो एक ये थीटा ऐसे है ना, तो थीटा 0 to पाई जाता है, तो ऐसे तुम्हारा ये फाई 0 से 2 पाई घुमाएंगे, हाफ कोन ऐसा कुछ बन जाए, या कोन ही बन जाएगा, इनफैक्ट कोन ही बन जाएगा. और अगर मैं फाई कांस्टेंट कर दूं तो इसमें आर ऐसे ऐसे है, 0 से 2 पाई नहीं, ऐसे ऐसे घूमेगा, और थीटा ऊपर से नीचे, यानी ये बेसिकली एक सेमी इनफाइनाइट प्लेन बन जाएगा. which are shown in figure 2.9, we notice that r equal constant is a sphere with its center at origin. Theta equal constant is a circular cone with z axis as its axis and origin as its vertex. Phi equal constant is a semi infinite plane as in cylindrical system. ठीक है, वो कैरी ऑन हो रहा है, जैसे इसमें z कांस्टेंट कैरी ऑन हुआ था, इसमें phi कांस्टेंट भी कैरी ऑन हुआ है. A line is formed by intersection of two surfaces. तो लाइन जो है एक इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस से बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर कांस्टेंट और फाई कांस्टेंट का कराऊं, तो देखो आर कांस्टेंट फाई कांस्टेंट हमारा एक ऐसा एक सेमी सर्कल टाइप बनाएगा. इज अ सेमी सर्कल पासिंग थ्रू क्यू एंड पी. द इंटरसेक्शन ऑफ और ये थीटा कांस्टेंट आर कांस्टेंट एक सर्कल बना देगा. थीटा कांस्टेंट एंड फाई कांस्टेंट मेरा ऐसे बनाएगा एक लाइन बनाएगा ऐसे. ठीक, ओके जी. तो इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सर्फेसेस गिव्स अ पॉइंट r5 थीटा पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 3, तो 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज. तो 5 पाई बाई 6 पाई बाई 3, ये 30, 36 is 18. So 5 pi by 6 pi by 3 is the coordinates of point P. So this P is 5 pi by 6 pi by 3 or 530 degree 60 degree. We notice that in general a point in three-dimensional space can be defined as the intersection of three mutually orthogonal surfaces. जो यहाँ पर भी हैं, mutually orthogonal होना जरूरी है, पर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी काम हो जाएगा. ऑल्सो अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस n इक्वल कांस्टेंट is plus minus an where n is x y z p phi r और थीटा. मतलब p phi z कर लो, x y z r थीटा phi, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कांस्टेंट कर लो, तो उसमें दो तुम्हारे वेक्टर्स आते हैं which are perpendicular to the surface. फॉर एग्जांपल टू प्लेन x equal 5, तो a unit vector plus minus ax and to a unit normal vector is your plus minus I cap, and to plane phi equal 20 degrees, phi equal 20 degrees प्लस माइनस फाई कैप हो जाएगा यार उसका. अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज फाई कैप या माइनस फाई कैप, फाई प्लस माइनस फाई कैप इज द नॉर्मल वेक्टर. तो ये अपनी कहानी हो गई. तो इस तरह हम लोग का ये थ्योरी पोर्शन ऑफ चैप्टर 2 इज फिनिश्ड. सो चैप्टर 2 का थ्योरी पोर्शन फिनिश है. इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग कुछ देर बाद देख लेंगे. आई विल सिट विद द नेक्स्ट सेशन and we'll continue.